Yes, so recording has started. Let us begin with the presentation. So this is the slide which I want to share, where you find the first topic of unit number 2, that is magnetic circuit, as a definitions. Basically in electric circuit also the definitions are important, but in electric circuit the definitions are already covered while dealing physics in 12th standard. Like in physics you have studied the basic definitions of electric circuit. So instead of having the same definition, repetition of it, we just thought of having the revision, and then we have started with the topic. In this case, the magnetic circuit, yes, it is also covered in the maybe in the 12th standard or before that. So you know this topic very well. The only thing is the related concept, the concepts which we need in the electrical engineering, that we have to understand. So if you just see what is given, the first heading is define and explain the following terms. What are the terms? See, this is what the format of a question which is generally asked when we have an offline examination in the university or sessional college examinations. But this time, as you don't have the offline, that maybe, I don't know exactly, but that maybe may not be there in the format. So therefore, I am going to cover both the formats of offline and online, so that every student can have the glimpse and the understanding of the topic. So the question is define and explain the following terms. The first topic is what? Flux. What is meant by flux? See, whenever we consider any of the example related to this, कोई भी एक example आप अगर लेते हो तो ये flux वाला definition आपको मिल जाता है. जैसे यहाँ पर आप एक circuit देख रहे हो, and what is the name of this circuit? The name of this circuit is electromagnetic circuit. अब what is electromagnetic, ये तो हम लोगों ने last class में देख लिया था in the introduction. So electromagnetic means a circuit which has the electro energy and magnetic energy combined together, so that we can have the electromagnetic energy. So electro energy is electrical energy and magnetic means the magnetization which is developed. हाँ बोलिए. अभी कोई यूज नहीं कर सकता? हाँ जी कर सकते. So एक ठोक पीट तो नहीं करोगे आप वहाँ पर? तो 12:30 टाइम निकालना 2 मिनट करेगा, उससे ज्यादा नहीं ना. ठीक. ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा, देयर इज अ इलेक्ट्रो एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रो एनर्जी? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा है? यहां पर आप देखें क्या लिखा हुआ है. कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी? ओके ओके, दिस इज योर वोल्टेज. दिस इज योर वोल्टेज. अब जैसे यहां पर आप एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, व्हाट हैपेंस? यू फाइंड द फ्लो ऑफ करंट. यहां से आपको एक करंट फ्लो होते हुए दिख रहा है. अब जैसे करंट यहां से पास होगा तो द इफेक्ट ऑफ दैट करंट, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा था, अगर आपको याद होगा तो, वोल्टेज से डेवलप होता है करंट, और करंट अगर किसी कॉइल से पास होता है तो यहां पर आई जस्ट राइट कॉइल. जैसे कॉइल से अगर कोई करंट पास होता है तो उस कॉइल के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. अब ये फील्ड आपको सिर्फ कॉइल के आसपास नहीं चाहिए, इसको आपको किसी और तरीके से किसी और के तरफ भेजना है. सो आप क्या करते हो? एक मीडियम यूज करते हो जिसको हम नाम देते हैं कोर. सो कोर एक ऐसा माध्यम हो जाता है, एक ऐसा एक मीडियम हो जाता है थ्रू विच वी कैन लिंक द फ्लक्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द कोर. सो ये हो गया आपका कोर, एंड कोर का फर्स्ट साइड जिसको हम कहते हैं लिम्ब, LIMB, लिम्ब. अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने इस लिम्ब को लेग भी कहा था. सो देयर आर 2 लिम्ब ऑन द side. Why we say 2 limbs? Because the structure which we have of the core, जो core का structure है, इस core के structure के हिसाब से यहाँ पर आपको 2 legs मिलते हैं.
दिस इज लेग एंड दिस लेग इज वाउंड विथ सर्टेन टर्न्स, तो उसको हम लोग कई बार कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। जैसे अगर आप लोगों ने ट्रांसफार्मर नाम सुना होगा तो इस चीज को हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। और अगर उसी तरीके का कॉइल, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कह रहे हैं, उसी तरीके का कॉइल अगर आप दूसरे साइड, दूसरे लिंब पे, यानी राइट हैंड साइड लिंब पे अगर आप वाउंड करते हो तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। सो ये जो वाइंडिंग है, जिस वाइंडिंग को आप कॉइल कह रहे हो, ये कॉइल का पर्पस ही ये है कि ताकि एक मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो हम लोग फाई कह रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर डेवलप हो सके। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डेवलप हुआ, यहां पर मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में बता दिया कि आपने एक सप्लाई वोल्टेज दी, एक सप्लाई करंट वहां से डेवलप हुआ, जो करंट कॉइल से पास हो रहा है, और कॉइल से करंट पास होते वक्त एक फील्ड डेवलप कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और आपको एक मैग्नेटाइजिंग एनर्जी मिल रही है, सो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। दोनों एनर्जीज को कंबाइन अगर आप कर देते हो तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब ये जो मैग्नेटिक एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं फाई, ये कहां पर डेवलप हो रही है, तो ये कॉइल के आसपास है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, उसको एक माध्यम से, एक मीडियम से उसको आप और दूसरी तरफ भेज रहे हो। सो दैट माध्यम, दैट मीडियम इज कॉल्ड एज कोर। सो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो डार्क डॉटेड लाइन है, ये डार्क डॉटेड लाइन आपको इंडिकेट करा रही है फ्लक्स। ये डार्क डॉटेड लाइन इंडिकेट करा रही है फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स आपका लिंक होगा, जो कॉइल के आसपास फ्लक्स डेवलप हो रहा है वह उस कोर को फॉलो करते हुए दूसरे साइड में पहुंच रहा है। तो ये जो पार्ट है, ये जो टर्म है जिसको हम कहते हैं फाई, दैट फाई इज नथिंग बट द फ्लक्स। दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स। सो लेट अस चेक द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, व्हाट फ्लक्स इज। जस्ट सी, इट इज डिफाइंड एज द total number of magnetic lines of forces passing through a given medium, passing through a given medium। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि कौन सा यहां पर मीडियम यूज किया गया है? कैन एनीवन टेल मी कौन सा मीडियम यहां पर यूज किया हुआ है? यहां पर कौन सा मीडियम यूज किया गया है? कैन एनीवन टेल मी? मैग्नेटिक लाइंस को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कौन सा मीडियम यहां पर यूज किया गया है? यस स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक लाइंस के लिए, मैग्नेटिक लाइंस यानी क्या है? फ्लक्स। तो मैग्नेटिक लाइंस यानी फ्लक्स को लिंक करने के लिए कौन सा मीडियम यूज किया गया है? यस, क्विक, यू कैन टेल मी। अच्छा, सपोज मेरे पास मोबाइल फोन है, मुझे किसी फ्रेंड को कॉल करना है, तो जब मैं कॉल करता हूं तो मेरा मोबाइल उस दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होता है, कौन सा मीडियम यूज होगा यहां पर कनेक्शन के लिए? कैरियर। हाँ, लेकिन मीडियम कौन सा यूज हो रहा है, यानी कैसे वो कनेक्ट हो रहा है? एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन से कनेक्शन कैसे हो रहा है? ओके, चलो, मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बराबर, लेकिन इसमें मीडियम कौन सा यूज हो रहा है? ओके, चलो, स्टिल आपको पता नहीं चल रहा है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आटा चक्की पे आप लोग कई बार जा चुके होंगे, आपने वहां पर गेहूं दे के आटा लेके आए होंगे, आप लोगों ने उस आटा चक्की को देखा होगा। सो आटा चक्की कैसे चलता है? या फिर अगर दूसरा एग्जांपल ले, बाइसिकल, बाइसिकल में पैडल होता है आपका फ्रंट में या सेंटर में, और उस पैडल के साथ आप कनेक्ट करते हो बैक व्हील। तो ये बैक व्हील और पैडल, इन दोनों के बीच में क्या होता है? व्हाट इज दैट मीडियम? एनीवन? एनीवन? गियर। ओके, गियर, चलो ठीक है, यू आर यूजिंग आई थिंक गियर साइकिल। So I think in between that you do have a chain, CHAIN, chain. Yes sir. Okay. अब उसी तरीके से अगर आप आटा चक्की पे जाते हो तो एक जगह पर आपने देखा होगा कि मोटर है, मोटर को ऑपरेटर शुरू करता है, मोटर शुरू होने के बाद
उसकी जो मशीन है, डिवाइस है, जिसको हम आटा चक्की कहते हैं, वो आटा चक्की शुरू हो जाती है. सो इन बिटवीन दैट मोटर एंड द मशीन, दैट इज एप्लीकेशन, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्टेड है? चेन है या वहां पर बेल्ट है? बेल्ट है. ओके. अगर मेरे पास एक डिवाइस है फैन, उसको मुझे स्विच से कनेक्ट करना है, तो स्विच और फैन के बीच में मैं कौन सा मीडियम यूज करूंगा? वायर. सो वायर क्या हुआ? इट्स अ मीडियम टू ट्रांसफर द करंट. बेल्ट क्या हुआ? बेल्ट इज द डिवाइस और द मीडियम टू ट्रांसफर द रोटेटिंग एनर्जी. मोबाइल टू मोबाइल जब हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो एयर एक्ट्स एज अ मीडियम टू ट्रांसफर द वेव्स फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड एंड रिसीविंग एंड टू सेंडिंग एंड. सो इट मीन्स similar way you have some medium which is available here. Can you tell me what is that medium? Can you tell me what is that medium? कौन से माध्यम के, कौन से मीडियम के थ्रू यहां पर आपका फ्लक्स लिंक हो रहा है? यस, कैन एनीवन टेल मी? अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो यहां पर मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है. सो व्हाट दैट? यस, इट इज कोर. ओके. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्लक्स? लेट अस चेक अगेन. It is defined as the total number of magnetic lines of forces. बराबर. इसका मतलब क्या है कि there are certain lines of forces and that passing through a given medium, that passes through a given medium, right? Okay. So here the medium is core. Here the medium is core, and through this core the lines of fluxes get developed. तो यहां पर कैसे हुआ? I just draw this particular figure again here. यहां पर आपके पास एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, यहां पर रेक्टेंगुलर ना ड्रॉ करते, आई एम जस्ट मेकिंग सर्किट लाइक अ स्क्वायर. सो ये है आपका स्क्वायर. इसमें आपने देखा होगा कि एक लिंब के ऊपर certain turns are wound, so this becomes a coil, and this coil is connected with the supply voltage. Then it allows current to pass. जैसे करंट पास होगा, यहां पर एक मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप होगी. अब वो मैग्नेटिक एनर्जी क्या रहेगी? फ्लक्स. दूसरा एग्जांपल, अगर आपके पास दो पोल्स है, लेट अस कंसीडर यू हैव एन पोल एंड एस पोल. आपके पास दो पोल्स है, एन पोल और एस पोल. इन दोनों पोल्स के बीच में यू फाइंड सर्टेन फोर्स. डेफिनेटली विद द प्रॉपर्टी वी डिफाइन इट एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज द फोर्स बिटवीन एन पोल एंड एस पोल. इट्स अ फोर्स बिटवीन एन पोल एंड एस पोल. सो व्हाट इज दैट फोर्स? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट हाउ वी डिफाइन दैट फोर्स? इट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन व्हाट? The magnetic lines. It is defined as the magnetic lines, and what those magnetic lines defines, that magnetic lines defines the flux. अब यहां फ्लक्स आप क्या करते हो? With the help of core medium. ध्यान से सुनना, everyone please listen to it very carefully. With the help of core medium you send those signals towards द अदर एंड. दूसरे एंड की तरफ आप उसको भेजते हो. सो ये जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दोज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दैट इज फ्लक्स. वी डिफाइन इट एज फाई, दैट इज फ्लक्स. सो सी, यहां पर मैंने एक लाइन से ड्रॉ किया. सो हियर देयर मे बी द नंबर ऑफ लाइंस. यहां पर आप और ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, बट यहां पर उन लाइन्स का भीड़ न बढ़ाते हुए, या ठिकाणी त्या लाइन्सची गर्दी न करता, आय हॅव जस्ट रिप्रेझेंटेड दोज लाइन्स विथ द सिंगल फ्लक्स. अदरवाइज यू मे फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस हियर, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस which are present. That may have the force of attraction or force of repulsion, depends on the energy or the opposite element which is kept. So ये जो लाइन्स है, these are number of lines.
these number of lines is called as flux. These number of lines is called as flux. Is it clear with this point? So I think the definition is very simple. I just show you that definition again. Yes, it is defined as the total number of lines. And what are those lines? वो lines को हम लोग क्या कह रहे हैं? It's a magnetic lines of forces passing through a given medium. Now, second line, yes, it is also important, but first line is very, very important. That gives you the definition of the flux. So the flux lines are the imaginary lines. Yes, it is imaginary. अगर किसी चीज को हम लोग देख रहे हैं, जैसे if I find Radhe movie on the movie channel, I watch that movie. So जो आंखों से rays निकल रही है and reaching to the TV medium or the TV which are sending certain signals towards my brain so that I can watch that particular channel, that all are imaginary lines. वो सारी imaginary lines है. Even कंडक्टर से पास होने वाला करंट वो कैसा है? इमेजिनरी. हाँ, अगर उस कंडक्टर को हम लोग हाथ लगाते हैं, अगर इंसुलेटेड नहीं है, अगर हम लोग करंट को हाथ लगाते हैं, यस वी फील दैट करंट को हम लोग फील कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉक, बट ऑल आर द इमेजिनरी लाइंस. ओके, अब ये दो एग्जांपल देने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा पैरामीटर और मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा पैरामीटर इमेजिनरी है? यस, एनीवन? इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक पैरामीटर इमेजिनरी है. नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा पैरामीटर इमेजिनरी है? एनीवन? फास्ट. आप सही जा रहे हो. इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट इमेजिनरी है और मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा पैरामीटर इमेजिनरी है? फ्लक्स. तो कैन आई से इलेक्ट्रिक सर्किट current is analogous to flux. दूसरी चीज, whenever we apply current here, whenever we give supply here, we find the flow of current. करंट फ्लो हो रहा है, फ्लक्स लिंक हो रहा है. करंट फ्लो होने के लिए कंडक्टर मीडियम, यहां पर कंडक्टर मीडियम है या कॉइल मीडियम है, और फ्लक्स लिंक होने के लिए कोर मीडियम. तो इसका मतलब दिस करंट इज एनालॉगस टू फ्लक्स. करंट इज एनालॉगस टू फ्लक्स. ओके, होपफुली यू ऑल आर क्लियर विद दिस. लेट अस चेक द सेकंड डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अब इसके लिए जस्ट दूसरा सिंपल एग्जांपल लेना चाहूंगा. सपोज मैं कहता हूं कि एक बेंच के ऊपर 3 लोग बैठे हुए हैं. इफ आई से देयर आर 3 पीपल सिटिंग ऑन अ बेंच, यहां पर 3 लोग बैठे हुए हैं. जस्ट इमेजिन दैट दीज 3 पीपल आर सिटिंग. ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दैट. सो इफ 3 पीपल आर सिटिंग ऑन बेंच, अब बेंच का डेंसिटी कितना हुआ? यस, कम ऑन, बेंच का डेंसिटी कितना हुआ? अच्छा, सपोज मैं कहता हूं कि एक क्लासरूम में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स कैन सिट. जितने भी नंबर ऑफ बेंच यहां पर होंगे 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन सिट. सो उस क्लास का कैपेसिटी कितना हुआ? 60 स्टूडेंट्स. अब उस क्लास का डेंसिटी कितना हुआ? 60. सो इफ लाइक सेम एरिया, यानी जितना एरिया इस क्लासरूम का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना इस क्लासरूम का है, सिमिलर वे देयर आर 3 क्लासरूम्स. सिमिलर वे देयर आर 3 क्लासरूम्स, 1 2 3, 1 2 3. If there are 3 classrooms and each classroom is having same capacity of 60, तो आप क्या कहोगे? The density of the classroom is 60 per class.
means the density of that classroom is 60 per cross sectional area. 60 per क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब जैसे मैं पिछले स्लाइड में जा रहा हूं, यहां पर आप देखें ये जो कोर है, इस कोर का कुछ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, एंड हाउ वी डिफाइन दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया in this pattern, and this cross sectional area is represented as small a. So what is flux density? Firstly, it is denoted by B. Flux density, density माने क्या हुआ कि कितनी चीजें वहां पर आ सकती है. जैसे सपोज मेरे पास एक वर्कशॉप है, लाइक आप लोगों ने वर्कशॉप देखा होगा, इट में भी आप लोगों ने वर्चुअल देखा होगा. अब उस वर्कशॉप में अगर मैं 10 मशीन्स को रख पाता हूं तो उस वर्कशॉप का डेंसिटी कितना हुआ? 10 मशीन्स पर वर्कशॉप. अगर मेरे पास एक पत्तों का एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने 52 कार्ड्स रखे हुए हैं. सो आई हैव अ कार्ड्स, लाइक टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52 इन वन बॉक्स. सो उस बॉक्स का डेंसिटी कितना हुआ? 52 पर बॉक्स. बराबर. अगर मेरे पास एक चॉकलेट का बॉक्स है एंड आई केप्ट इट 100 पीसेस ऑफ द चॉकलेट्स, सो उस बॉक्स का डेंसिटी कितना हुआ? 100 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स पर बॉक्स. Likewise, if I have 10 boxes, so it means I can say 100 pieces per box, and there are 10 number of boxes present, 10 number of boxes available. So यहाँ पर while defining this flux density, what I say is flux density. नाम देखो क्या है? Flux density. So if you say density, इसका मतलब क्या है? Flux. यहां पर आपका वर्ड आ गया कि नहीं? फ्लक्स. फ्लक्स डेंसिटी माने फ्लक्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया. फ्लक्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया. नाउ डू यू नो द यूनिट ऑफ द फ्लक्स? व्हाट इज रिटन? कैन एनीवन जस्ट रीड इट? Weber. Weber. Very good. What is the unit of area? What is Meter. the unit of? Yes, very good. What is that? Meter. Meter. Area का यूनिट मीटर नहीं होगा बेटा. Meter square. Where? Yes. Square meter. Yeah, square meter or meter square, because area is given by the equation length into breadth. Okay, so it's meter square. Just a second. It is meter square. Fine. So it's a meter square. ओके, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर. अच्छा, फ्लक्स को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? फाई के साथ. अच्छा, एरिया को आपके पास चॉइस है रिप्रेजेंट करने का, इधर यू रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल ए और कैपिटल ए, क्योंकि यहां पर आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है इट इज रिप्रेजेंटेड एज बी. तो इंग्लिश के 2 अल्फाबेट्स यहां पर आपको दिखते हैं आउट ऑफ 26. वन इज फ्लक्स डेंसिटी बी एंड अनदर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. एंड what is the unit of flux? If you ask me, I'll give you the unit is Weber. The unit of area is meter square, and what is the unit of B is Weber per meter square. Another unit which is represented is Tesla. You heard this word many times, because nowadays this particular word is in the boom, because this company is making, this is the name here, name of the company. Tesla is the name of the company who are working on electrical vehicles, and they do have a huge requirement of electric vehicle engineers. So there are a few number of courses which are introduced related to this electrical vehicles. Okay, so this is just a general information which I wanted to share. So what is that? Tesla. So Tesla is another unit of the flux density, and how this flux density is represented? It is Weber per meter square. Weber per meter square, that is B is equal to phi upon A.
B is equal to phi upon A. So can anyone give me the definition of flux density? Flux upon area. हाँ, but how we define that? जैसे मैंने आपको कहा था 60 per class. Number of flux present per Yes. unit area. Yes, per unit area. So that is what the definition. Very good. So it is lines of forces per cross-sectional area is the definition of flux density. So I just show you that definition. I think all of you can see this. Yes, sir. Yes, it is defined as the flux passing through a unit cross-sectional area of the magnetic circuit. Where I already said you may use capital A or small a, there is no problem. So you have a choice. मैंने small a वहां पर use किया हुआ है. In the definition it is given as capital A, but that represents both represents same, that is cross-sectional area. So where A is the perpendicular to the flux, means cross-sectional area should be perpendicular to the flux. Okay, so that is called as cross-sectional area. So it is defined as flux passing through a unit cross-sectional area or flux per cross-sectional area. Is it clear to all? Yes, sir. Okay, now let us take another example to understand the third definition called as magnetomotive force. यहाँ पर तीसरा definition लेने से पहले I just want to share one simple example. अच्छा, आप लोग मोबाइल का टॉर्च यूज करते हो क्या? कई बार कोई एक चीज ढूंढने के लिए घर पर. हाँ, आप लोग क्या, हम लोग सब लोग यूज करते हैं. अच्छा, अगर आप रोड से जा रहे हो तो many times we found अंधेरा. So what we do, we use our torch, maybe like मोबाइल फोन का टॉर्च, या फिर हम लोग एक थोड़ा बड़ा टॉर्च यूज करते हैं. जैसे लाइक पुराना एक कुछ सालों पहले एक टॉर्च यूज किया जाता था जिसमें 2 या 3 बैटरीज लगती थी, तो वो टॉर्च यूज करते थे. अच्छा, आप लोगों ने कोल माइंस में ऑपरेटर इंजीनियर्स को काम करते हुए देखा होगा, जहां पर कोल माइंस में आपको जमीन के अंदर जाना पड़ता है एंड यू फाउंड कि वहां पर काफी अंधेरा है. तो दे प्रीफर टू यूज वन हेड टॉर्च, यानी वो एक सर के ऊपर कैप टोपी लगाते हैं और उस कैप में एक टॉर्च लगा हुआ रहता है. आपने ये चीज डॉक्टर को भी यूज करते हुए देखा होगा कि डॉक्टर उसके हैट में, व्हाइट हैट के ऊपर एक टॉर्च लगा के उस टॉर्च को यूज करता है. सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टॉर्च? यस, प्रिफरेबली, डेफिनेटली. तो जो मोबाइल फोन का टॉर्च हम लोग यूज करते हैं उसका फोर्स कम होता है. जो हम लोग बाहर जाते हुए अंधेरे में टॉर्च यूज करते हैं उसका टॉर्च का फोर्स ज्यादा होता है. जो कोल माइंस में हम लोग टॉर्च यूज करते हैं उस टॉर्च का फोर्स और ज्यादा होता है. रेलवेज में जो इंजन के ऊपर लाइट लगता है उस लाइट का टॉर्च बहुत ज्यादा होता है. जो हेलीकॉप्टर्स में या फिर एरोप्लेन्स में लाइट्स लगती है उनका फोर्स और ज्यादा होता है. Are you getting my point? Are you getting my point? So my point is we have third definition here that is called as MMF. And what is MMF stands for? MMF stands for magnetomotive force. It is defined as magnetomotive force. So magneto माने क्या? Magnetic energy. It is magnetic energy. Motive यानी क्या? Motive माने motion. Motive का दूसरा एक definition होता है motion. And F stands for force. So a magnetic energy. Magneto माने magnetic energy. A magnetic energy which moves, motion माने moves, movement, which moves due to application of force. Very simple definition. Due to application of force. थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, therefore हैंडराइटिंग मेरा अच्छा नहीं आ रहा है, बट मेरा हैंडराइटिंग काफी अच्छा है. Okay, so
a magnetic energy which moves due to application of force, that is called as magnetomotive force. अब मैग्नेटिक एनर्जी किस फॉर्म में है? तो मैग्नेटिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स. So a flux which moves due to application of force called as magnetomotive force. Let us check the definition. Is it clear with the definition? Do you have any problem? Okay, what is EMF stands for? Electromagnetic force. Yes, electromagnetic force, but in terms of EMF, like EMF को हम लोग कहते हैं electro motive force. EMF stands for electromotive force. ये जो हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो इलेक्ट्रोमोटिव मींस ईएमएफ. अच्छा, अब अगर ये सिंबल मैं ड्रॉ करता हूं तो ये किस चीज का सिंबल है? कैन एनीवन टेल मी? बैटरी. बैटरी. वेरी गुड. दिस इज द सिंबल ऑफ अ बैटरी. बैटरी में क्या होता है? बैटरी में क्या होता है? EMF और EMF और potential difference. yes, or potential difference. So what is the meaning of that EMF? A electric energy. यहां पर magnetic है ना, so instead of that, a electric energy which moves due to application of force, which moves due to application of force. What is that called? Electromotive force. Electromotive force. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सा होगा भैया? दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज करंट, right? Because see, whenever you apply potential difference, you get the flow of current, and that current is nothing but the motion, or that current is what the active element in it. So the active element is current. So what is EMF? EMF is electric energy which moves due to the application of force. अब जैसे यहां पर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी मूवमेंट करंट है, मैग्नेटिक एनर्जी मूवमेंट फ्लक्स है. सो जो फ्लक्स मूव होगा, it is due to certain force, and what is that force? Is magnetomotive force. Current move hoga, it is due to certain force, and that force is electric current. Is it clear with this point? Hopefully you all are. Let us check the definition. अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर force है क्या? Yes, there is a force. I just show you. But let us check the definition. Please check this third definition and then the equation. क्या लिखा हुआ है? Can anyone just read it out? Yes, come on guys, don't sleep. You have to wake up. Come on. Electromotive force. It is defined as that force which circulates the magnetic flux in the magnetic circuit. It is also defined as the product of the current I and the number of turns of the magnetic coil. Very good. Perfect. So MMF is equal to N into I. So that N into I is the equation which we have said. यानी जो यहाँ पर definition में दिया हुआ है उसका, yes, check this. उसका equation N into I, it is written. अब can you tell me where that magnetomotive force lies? इस particular circuit में magnetomotive force कहाँ पर रहेगा? आप लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन अभी पढ़ा बच्चों. कम ऑन, यू कैन टेल मी. आप लोगों ने क्या कहा? एमएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स. सो वेयर दैट एमएमएफ लाइज इन द इक्वेशन, इन द सर्किट? परपेंडिकुलर टू. हाँ, बोलते जाओ. यहां पर N क्यों? and I.
N into I, करंट कहां से पास होगा? कॉइल से, बराबर है ना? ये कॉइल से जैसे करंट पास होगा, ये कॉइल से करंट पास हो रहा है, देखो जल्दी 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 जल्दी, जस्ट सी, ये करंट जैसे पास होगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स किसके है? कॉइल के हैं। सो एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल, है ना? ये कितना टर्न हुआ? एक टर्न, बराबर। ये कितना हुआ? दो टर्न। ये कितना टर्न हुआ? TURN, 3 टर्न्स। ये कितना हुआ? 4 टर्न्स। Are you getting my point? So these are the number of turns. How many number of turns? In general, we represent that as number of turns N. So N multiplied by current which is passing through this coil. इस coil से जाने वाला current, that is I. So the product of N into I can develop a force. Can develop a force. And what is that force is? Force is MMF. And what that force is to? What is the purpose of that force? The purpose of that force is to develop the magnetomotive. Magnetomotive means magnetic energy को move करने के लिए. And what is that magnetic energy? That magnetic energy is flux. So therefore, magnetomotive force is the product of number of turns of coil multiplied by, sorry, product मैंने already बोल दिया. So number of turns of coil and flow of current or electric current. Is it clear with the definition? Yes, sir. Any doubt? Okay, No, I think okay. So when I take the attendance, I find everyone is giving attendance like yes sir, or they are putting their attendance in the chat box. But whenever I am asking a question, I find only 1 or 2 students giving the answer. Don't do that. Please give the answers so that I can understand whether the student is getting the things or not. Right? So see, कैसे है ना कि जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा, जब तक आपकी तरफ से कोई मुझे जवाब नहीं मिलेगा, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा whether the student is getting or not. अच्छा, मुझे बताइए, किसी शॉप में आप जाते हो, कोई एक चीज आपको परचेस करनी है, तो क्या शॉप में जाने के बाद आप खड़े रह जाते हो क्या? आइडियल आप खड़े हो, सपोज ऐसा हुआ कि आप आइडियल खड़े हो शॉप के सामने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा, तो सबसे पहले चीज तो शॉपकीपर आपको उतने देर खड़े नहीं रहेगा, खड़े नहीं रखेगा। और दूसरी चीज, वो शॉपकीपर आपको पूछेगा कि भैया क्या चाहिए, तो जब तक आप नहीं बताओगे कि आपको क्या चाहिए, तब तक वो शॉपकीपर को पता चलेगा कि क्या चाहिए। हाँ, अगर आप किसी मूवी मॉल के सामने आप चले जाते हो और आप मूवी टिकट बाय करना चाहते हो, तो वो डेफिनेटली सोचेगा कि भैया एक बंदा है तो एक टिकट ये लेना चाहता है, लेकिन उसको भी पता नहीं चलेगा कि नंबर ऑफ टिकट्स आपको कितने चाहिए। इवन घर पर भी आप अगर मम्मी को जब तक नहीं बताते कि मम्मी मुझे 1 रोटी चाहिए या मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तब तक आपको कोई चीज मिलती नहीं है। अगर आप पापा को नहीं बताओगे कि मुझे 10 रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए पेट्रोल भरने के लिए, तब तक आपको वो चीज नहीं पता चलेगी। पेट्रोल पंप पे अगर आप जाते हो पेट्रोल भराने के लिए, जब तक आप नहीं बताओगे कि मुझे 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, तब तक वो पेट्रोल नहीं देगा। So friends, similar way, I just need the feedback. I just need the answer from your side, so that I can understand whether you need more explanation to the question, you need more explanation to the topic which we are discussing. So everyone has to participate. हर एक को participate करना individually जरूरी है, because individually you people are going to appear for virtual examination or maybe offline examination. Okay, so students, everyone please participate. Everyone has to participate. Okay, now I just take one more example, one more definition. Here I have done with the 3 definitions. I just take one more definition here. ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज यहां पर एक आपने क्लॉथ का एक पर्दा रखा हुआ है, और उसके सामने आपने एक एलसीडी प्रोजेक्टर रख दिया।
आपने इसके सामने एक एलसीडी प्रोजेक्टर रख दिया। अब ये डिस्टेंस हम लोग एक कंसिडर करते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट दिस डिस्टेंस बी L, दैट इज लेंथ। और ये एक प्रोजेक्टर है, मूवी प्रोजेक्टर भी आप कह सकते हो। क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रोजेक्टर यूज होता है जिसमें लाइट होती है डेफिनेटली। सो वो एक चीज लाइट वो प्रोजेक्ट करती है। सो यहां पर वह चीज प्रोजेक्ट हो रही है। ओके, अब इस प्रोजेक्टर का एक स्ट्रेंथ होगा, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से यहां पर आपको वह इमेज काफी क्लियर दिखेगी, राइट। सो क्रिस्टल क्लियर वहां इमेज आपकी रहेगी। अब यहां पर आपने उस चीज का लेंथ बढ़ा दिया, यू केप्ट इट हियर। अगर उस प्रोजेक्टर को आप यहां रखते हो तो क्या होगा, उस प्रोजेक्टर का डिस्टेंस जैसे आप बढ़ा देते हो, जैसे आप डिस्टेंस यहां पर बढ़ा देते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, strength of signal or light reduces. Strength of signal or a light reduces. Even एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप रोड पर खड़े हो और आपको सामने से कार आती हुई दिख रही है, अगर वह कार आपकी लेट अस से स्ट्रेट रोड है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो आपको आती हुई कार यानी लाइट दिखेगा, सपोज अंधेरे में है तो लाइट जो दिखेगा वो काफी डीम रहेगा, लो लाइट आप लोगों को दिखेगी। वही कार जैसे जैसे आपके करीब आते जाएगी तो वही लाइट और डार्क बनते जाएगा। सो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, उस लाइट का स्ट्रेंथ बढ़ने के वजह से यह लाइट आपको और डार्क दिखता है। अब उसी तरीके से एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम लोग कहते हैं। सो दैट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, जैसे यहां पर मैंने एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसकी पोलैरिटी है N, और यहां पर मैंने एक पिन रख दी, यहां पर मैंने एक पिन रख दी, तो दिस मैग्नेट डेफिनेटली विल अट्रैक्ट दिस पिन। ये मैग्नेट उस पिन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। वही पिन का अगर डिस्टेंस मैं बढ़ा देता हूं, इफ आई जस्ट कीप दैट मैग्नेटिक पिन और इफ आई जस्ट कीप दैट पिन हियर, तो यहां पर मेरा पिन 1 है एंड लेट अस से पिन 2 यहां पर मैंने रखा हुआ है, तो क्या उसी स्ट्रेंथ से उस पिन को वो अट्रैक्ट करेगा? नहीं। यहां पर इस पिन के ऊपर जो मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी N और उस पिन के बीच में रहेगी, ये काफी रिड्यूस्ड अमाउंट में रहेगी। इट इज इन दी रिड्यूस्ड अमाउंट। इस पिन को और मैं पास में ले जाता हूं तो वो मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? तो डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज द मैग्नेटिक एनर्जी, that will increase the magnetic energy, that will increase the magnetic strength. Is it clear up to this point? Yes, sir. Okay. अब आपको मैं एक सिंपल और एक चीज बताता हूं। आप लोग घर पर दीवार के सामने अगर बैठ जाते हो तो मोबाइल टॉर्च लेके आप बैठे, मोबाइल का टॉर्च आप लेके बैठे और उस मोबाइल टॉर्च को आप दीवार की तरफ डायरेक्ट करते हुए उसका लाइट ऑब्जर्व करें। अब क्या करें कि उस मोबाइल फोन को आप उस दीवार के तरफ ले जाए। इट मींस यू हैव टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द मोबाइल टॉर्च। एज यू reduces the gap, you find the signal, means the light becoming dark, because all the light energy get accumulated, right? Because of the reduction in the cross sectional area, the light energy get increased. Now increase the gap between the two. अब gap को आप increase करें,
जैसे गैप को आप इंक्रीज करोगे तो व्हाट यू फाइंड इज द लाइट एनर्जी बिकम्स लाइटर, यानी दैट लाइट एनर्जी जो है, यानी जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसका सिग्नल है, दैट बिकम्स वीक, द सिग्नल्स रिड्यूसेस, the light energy reduces because it spread more and more, and therefore you find that light energy becomes weak. So what is that called? That is called as the light energy. Over here in magnetic terms it is referred as the magnetic energy. Can you see that definition? यहाँ पर आप definition देख सकते हो. What is that? Magnetic field strength. It is defined as the MMF required, magnetomotive force ही आपका एक force है ना, so MMF required for circulating the flux through unit length of magnetic circuit. इसको कैसे दिया हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, just see, H is equal to MMF upon L. H is equal to MMF upon L. Okay, so this is what the equation. See, we will see its unit, the other parameters related to same in the tomorrow's class. Tomorrow we have a class at 12:30. Please be ready with the class. And before that, I just suggest you to watch this video, which is going to be uploaded soon on the YouTube and hence on the WhatsApp. So I'm going to share this video just after your lecture. Now I suggest you all to put your attendance immediately in the chat box. So it's 12:29. If you don't have any query to ask, you can leave immediately. It's 12:30 because you have to join next class immediately after this. Samir Kedar, leave immediately. Samir Kedar.